Assalamualaikum class. Hopefully you are doing well. I'm your chemistry teacher, Miss Bisma. Yesterday we are starting our new chapter, that is environmental chemistry, and we are discussing about the definition of environmental chemistry, air pollutants and atmosphere, and some major constituents of air pollutants, some minor. And today we are discussing the pollutants and their harmful effects. So let's start. Some air pollutants that are shown there that effect are very harmful. One is sulfur dioxide. Sulfur dioxide cause eye irritation, cough and respiratory diseases. And the second one is nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide damages plant leaf, retard photosynthesis, causing asthma and affect lungs. And carbon monoxide retard the oxygen carrying ability of blood, causing dizziness, tension and loss of consciousness, blurring of eyesight and cardiac arrest. And the other is carbon dioxide. Increase the level of carbon dioxide in air results in global warming, cause nausea and headache. And the fourth one is the hydrocarbons, the carcinogenic agents, the cancer causing agents, produce cancers, cause irritation of eye and in mucous membrane. So these are the harmful effects of some air pollutants, and here is some amazing effects of our environment. Number one is 78% of the marine mammal are at the risk of choking with plastic. Humans can use only 1% of all available water. Our human beings are only 1% of water about all over the world. And the third is the world has over 3.04 trillion trees. 27,000 out of them are cut down daily to make a toilet paper. And now we are discussing our most important topic of this chapter, that is acid rain. As the name indicates, that acid rain, the rain that contains some kind of acids, are called the acidic rain. We can say that in a simple words, that acid rain, the rain that contains some kind of acids in it, are called acid rain. So let's start. Here is a discovery of acid rain. Acid rain was initially recognized by Robert Angus Smith. Robert Angus Smith is the first scientist who discovered about the acid rain, a Scottish chemist who first used the term acid rain in 1852 while studying the rainwater chemistry near industrial sites in England and Scotland. He also called as a father of acid rain. जो रॉबर्ट एंगस स्मिथ था, उसको बाद में फादर ऑफ एसिड रेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एसिड रेन के बारे में डिस्कवर किया था, जिसने एसिड रेन को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट, here is a question arise that what is acid rain. So acid rainwater that has a pH of less than that of the natural water. जो एसिड रेन बेसिकली ऐसी रेन होती है जिसमें जो pH की जो अमाउंट होती है वो आपकी लेस दैन 5.6 pH होती है. 5.6 जो pH होती है वो आपकी नॉर्मल जो रेनी वाटर होती है ना, उसकी pH होती है. ये आपको नीचे स्केल में शो किया गया है. ये सबसे नीचे लास्ट पे देखें, pH 4.3 होती है एसिड रेन की pH, और जो pH होती है क्लीन रेन की वो आपके पास होती है 5.6 क्लीन रेन की pH, और जो आपकी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी pH होती है वो आपके पास होती है 7, जिस पे आप लोग कहते हो कि ये न्यूट्रल pH है. सो हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड when sulfur dioxide and sulfur trioxides and nitrogen monoxide and nitrogen dioxide gases in the atmosphere combine with the water vapors and precipitates as sulfuric acid or nitric acid. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि जब आपके ये जो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो होते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं. सो दे विल मेक अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड.
दिस एसिडिक प्रेसिपिटेट देन फॉल टू द अर्थ एज अ रेन, और फिर ये आपको बारिश की सूरत में ये जो आपकी एसिडिक फॉर्म में आपको मिलते हैं, स्नो और फॉग. So next is how causes of acid rain. So the natural causes are volcanic emission and biological processes and lightning, and some anthropogenic causes. Anthropogenic means are man-made, are artificial, and factories, industrialization, motor vehicles, automobile exhaust, coal-based power plant, domestic fires, and smelters. Smelter is basically a process of from the mineral ore to form a pure metals. This process is called a smelter. So here is a formation of acid rain. एसिड रेन यहाँ पे उन्होंने बताया कि एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कि जब आपका सबसे पहले वो बता रहा है कि आपकी जो सल्फ़रस एसिड होता है वो कैसे बनता है. पहले जब सल्फ़र डाइऑक्साइड वो आपके पास रिएक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर के साथ, तो आपको देता है सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फार्मूला आपके पास है H2SO3. ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास H2SO4 होते हैं, 4 आपके पास इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सल्फ्यूरस में आपके पास आ जाते हैं 3. सो द नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. When sulfur dioxide react with the oxygen that are present in your atmosphere, it will form a sulfur trioxide, and this sulfur trioxide is also react with the water vapors that are present in the air, that will make a sulfuric acid. That one is your strongest acid that causing the acidic. Nitrogen oxides form nitrous acid and nitric acid. When nitrogen oxide react with oxygen that are present in the atmosphere, it will form the nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide react with the water vapor that present in the air, it will make a nitric acid and nitrous acid. HNO3 is a nitric acid and HNO2 is a nitrous acid. Don't confuse it. So here is a diagram that show that how acid rain is formed. When the harmful pollutant like nitrogen dioxide and sulfur dioxide are emitted from the industry, they react with the water vapors, as I can show the previous slide. When the sulfur dioxide react with the water vapor, it will make a sulfuric acid. जी जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर वेपर्स के साथ, सो इट विल मेक अ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कि आपको फिर बाद में एसिड रेन की फॉर्म में आपको मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड हेयर इज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. हाउ एसिड रेन इफेक्ट्स द प्लांट्स, ह्यूमन्स, बिल्डिंग्स, एट्सेट्रा. Here acid rain affect the plant, affects plants and trees, causes yellowing the leaf tissues, that is called chlorosis. And the next is here is a plant effect of plant, direct effect on plant growth due to toxification of soil. It takes away soil nutrients causing stunt growth like वो growth को inhibit कर देता है plants की, जिसकी वजह से क्या होते हैं, plants आपके पास मुरझा जाते हैं और फिर बाद में उनकी death हो जाती है. Block the stomatal pores of leaves, electron transport system, biological reaction dominated by pH or effect dehydration of plants chlorophyll. And the next effect is soil. How acid rain affects the soil? Acid rain damages soil biology and chemistry. Microbes not able to tolerate low pH and dies. Upper fertile layer of soil is affected as essential nutrients are leached away from the soil. जब आपके पास एसिड रेन जब आपके अर्थ तक जो सॉइल तक पहुंचती है, तो सॉइल के ऊपर जो आपके पास आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको अपने साथ लीच आउट कर लेती है, मतलब अपने साथ बहा के ले जाती हैं एसिड रेन. तो जिसकी वजह से जो आपके पास ऊपर फर्टाइल लेयर होती है वो आपकी सॉइल की डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो होती है वो काफ़ी इनहिबिट हो जाती है. तो थर्ड इफ़ेक्ट है आपके पास सरफेस वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल्स के. आपके पास जो एसिड रेन होती है वो किस तरह एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट कर रही है.
Acid rain causes lower pH and high aluminum concentration in surface water and causes damages of fish and aquatic animals. क्या होता है कि एसिड रेन जो होता है ना वो वाटर की पीएच को लो कर देती है और उसके अंदर एल्यूमिनियम की कंसनट्रेशन को हाई कर देती है. जब आपके वाटर के अंदर एल्यूमिनियम की कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी ना तो वो एल्यूमिनियम जो है ना आपकी फ़िशेस की जो गिल्स के अंदर ना वो आपकी क्लॉट होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से उनके गिल्स जो होते हैं वो आपके पास वहाँ पे क्लॉटेशन हो जाएगी और वो उनको सांस नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी. Second is the biodiversity of water body is reduced, and the third is lakes, rivers and fragile ecosystems where each species depend on other to survive. If one disappear the other two disappear. कि how one species affected to the other, कि अगर एक आपकी स्पीशीज़ जो है वो अगर डिसअपेयर होगी इस एसिड रेन की वजह से एक्वेटिक लाइफ में तो अदर दूसरों को भी इफेक्ट होगा जी. फोर्थ वन इज़ कि किस तरह एसिड रेन आपकी ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है. एरोसोल मिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ वेरी सीरियस रेस्पिरेटरी इफेक्ट. कि जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्मेल होती है ना वो ही आपकी कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. आपको सांस लेने में इशू हो सकता है. एसिडिफिकेशन प्ले द हवॉक विद ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. कि जो आपके पास आपकी ये जो एसिड रेन होती है ये आपकी कैसे आपके नर्वस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है. फिफ्थ वन इज़ अफेक्ट ऑन बिल्डिंग. कि आपके पास जो ये एसिड रेन है वो आपकी बिल्डिंग्स को कैसे इफेक्ट कर सकती है. पहले इसके इफेक्ट है आपके पास कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चरल मटेरियल्स एंड मार्बल, लाइमस्टोन एंड स्लेट. जैसे आपकी जो एसिड रेन होती है इसमें क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन में कि सल्फ्यूरिक एसिड आपकी फॉर्मेशन होती है H2SO4. H2SO4 जब आपका बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो CaCO3 जिसको आप लाइमस्टोन कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो वो आपके पास कैल्शियम सल्फेट बना देता है, जो कि आपकी कैल्शियम सल्फेट जो कि आपकी क्या करता है जो बिल्डिंग्स को डैमेज करता है. बिल्डिंग डैमेजिंग आपके पास केमिकल है. इन ग्रीस एंड इटली unavailable stone statues have been partially dissolved by acid rain. Taj Mahal in Agra is also suffering due to the acid fumes from the Mathura refineries. And the sixth one is deterioration of Taj Mahal. Taj is the seventh wonder of world, as you all know about this, getting the detorted because of emission of Mathura oil refinery, which lies 40 km away from the Taj. The oil refinery emits 25 and 30 tons of sulfur dioxide daily in spite of using low sulfur fuels. कि जो आपके पास ताजमहल है इसके पास ही एक मथुरा रिफाइनरी के बारे में वो बता रहा है कि उसमें से डेली आपके पास 25 to 30 टन्स जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो डेली इसमें से एमिट होता है, जो कि आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड फर्दर आपके एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, जो आपके पास ऑब्वियसली आपकी जो है बिल्डिंग की जो आपकी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा जी. हेयर इज सम कंट्रोल मेजर्स. क्लीन combustion technology. Second is using pollution control equipments, and third is the replacement of coal by natural gas or renewable energy resources, and fourth is liming of lakes and soil. Fifth is the formulate the policy framework for reduction of sulfur dioxide and other acid rain causing gas emission. And the sixth one is gas as a setup of sub project that promote cleaner production, reduce acid rain and air pollution, improve environment. ये कुछ मेजर्स कंट्रोल बताए गए हैं कि किस तरह आप इन एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो हियर इज़ योर रिटन टास्क फॉर टुडे. How does air pollution affect plants? Question number 1. And which acid are made when sulfur dioxide and nitrogen dioxide dissolved in rain? And third one is what happened to the soil if trees are destroyed by acid rain? So this is your written task that you are write in your school register.
And if you have any question or any confusion about the today lesson, you can ask me freely. And जी स्टूडेंट्स, कल कुछ बच्चों को इश्यूज़ आ रहे थे कि बुक से उनको पता नहीं था चल रहा कि क्या टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने विद हेडिंग्स आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और विद हेडिंग्स आपने अपना लेसन याद करना है। ये जो हम लोगों ने कल पढ़ा था ये डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन। इसमें आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और उसके बाद आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस करनी है। यहाँ से इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ से आपने टिल नेशनल लेवल्स, यहाँ तक आपकी इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। आगे आपके पास आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ्रॉम सिंस टू सिटीज़। These are the impact of human activities, and the last one is a harmful effect of the agriculture chemicals from the excessive use till to the atmosphere. And the next is the composition of atmosphere. Here is the definition of atmosphere from the earth to the gases. And the next one is the importance of air. Importance of air. They can ask you as a short question, what define atmosphere and what is the importance of air. Then you can write the atmosphere, definition of atmosphere and the importance of air. And the next thing is components of atmosphere. Here is the components of atmosphere, the components to the atmosphere till the night, day to the night. And you can also learn this table, and they can ask you as a MCQs from these table, like major constituents and some minor constituents. And these two questions you write as your homework. एंड द थर्ड इज़ द एयर पोल्यूटेंट। इस टॉपिक में से आपने सिर्फ एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। मैंने हेडिंग अंडरलाइन कर दी है कि कंसंट, ये आपकी जो पैराग्राफ है इस पे हेडिंग बनेगी कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो नेक्स्ट है वो आपके पास है मेजर एयर पोल्यूटेंट। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, और ये आपने नाम उसमें बताने होते हैं, और ये आपने इसमें मेजर एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपके पास इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। आपके पास सबसे पहले इसकी आपकी हेडिंग बनेगी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ मिलियन ऑफ टन्स टिल द pollution problem, and the next heading is by fossil fuel, like by human activities by fossil fuel, from burning of fossil fuel till particle. This is the next heading. And the third heading is by the natural processes, many of these pollutants till the digestion in animal. And other is the other effects. Other heading is other effects from rapid growth टिल वेरी बैडली, इन्वायरमेंटल वेरी बैडली। यहाँ तक आपने अदर फैक्टर्स, इसकी हेडिंग है। आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, या आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अनदर पोल्यूटेंट, यहाँ से लेके आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स तक, यहाँ पे ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के बारे में। और नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। और ये जो आज हम लोगों ने टॉपिक आज पढ़ा है पोल्यूटेंट एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकल मैटर। इस सब आपने ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही इसको तैयार करना है। और नेक्स्ट आपका सबसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इससे ट्रेन, और ये आपने विद हेडिंग्स के साथ इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपकी एसिड रेन के बारे में एक छोटी सी कह सकते हैं डेफिनेशन है। व्हेन एसिड रेन से, व्हेन एसिड वाटर, यहाँ से लेके आपका एज एसिड, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। आगे नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है डिस्कवरी ऑफ एसिड रेन, हु डिस्कवर्ड एसिड रेन इन 1852 से लेके आपने यहाँ तक करना है फादर ऑफ एसिड रेन।
फादर ऑफ एसिड रेन, यहाँ तक इसकी हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ एसिड रेन की। नेक्स्ट आ जाती है प्रोडक्शन, लाइक हाउ एसिड रेन आर प्रोड्यूस और द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये इसकी हेडिंग यहाँ से बनेगी बर्निंग, और ये सारा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे इंडस्ट्रीज़ में से आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट में चला जाता है, और फिर बाद में वो जो इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके वो आपके पास एसिड रेन की फॉर्म में दोबारा लेक्स और रिवर्स में आपको मिलता है और आपकी ज़मीन में। ये आपके पास कुछ इक्वेशन है एसिड रेन की, ये मैंने आपको इक्वेशंस बता दी हैं। ये प्रोडक्शन वाली जो हेडिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल टिल एंड इन्वायरमेंट, यहाँ तक। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास। आगे नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये भी आपके पास अलहदा से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स that effect on the acid rain. So these are some effects on soil, plants, aquatic life, और आपके पास ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। ये जो अभी मैंने आपको बिल्डिंग्स के बारे में बताया ये उसके बारे में है। तो ये आपको अलग-अलग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और ये आपको होल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है।